हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आई होप आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो वर्तमान आम डिस्कस करने को जाऊे 30 MCQ फंडामेंटल ड्यूटीज एवं डीपीएसपी उपरू। तेबे चलंतु आ डेरी न करी डिस्कशन स्टार्ट करबा। ओके, तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन टी रही द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑप्शन ए majority of the people wanted it. Option B, a section of people was not fulfilling its obligation of respecting the established legal order. Option C, the government felt this would ensure quicker progress of the country. Option D, the Supreme Court emphasized the need of incorporation of these duties in the Constitution. The question thila, the fundamental duties were added to Constitution because फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक आम कन्स्टिट्यूशन रे कौन पई ऐड करा जायछि तार कारण कौन बिकॉज चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन बी ए सेक्शन ऑफ पीपल वाज नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ रेस्पेक्टिंग द एस्टैब्लिश्ड लीगल ऑर्डर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a fundamental duty as outlined in Article 51A of the Constitution. Option A, to abide by the Constitution and respect its ideals. Option B, to defend the country and render national service when called upon to do so. Option C, to work for the moral upliftment of the weaker sections of society. Option D, to preserve the rich heritage of our composite culture. The question rahithila, which one of the following is not a fundamental duty as outlined in Article 51A of the Constitution. आम Constitution रो Article 51A रे जो fundamental duty संपर्क रे सूचित करा जायछि से fundamental duty एमानक मध्यरु केउंटी नुहे. ओके, तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन सी, टू वर्क फॉर द मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो ऑप्शन सी होची यार राइट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स. ऑप्शन ए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म and spirit of inquiry and reform. Option B, to work for raising the prestige of the country in the international sphere. Option C, to protect and improve the natural environment. Option D, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. तो हमारा क्वेश्चन थिला which one of the following has been wrongly listed as a fundamental duty of the Indian citizens. हमर जो भारतीय नागरिक मानक लगी फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक दायित्व जहा सब रही तो सेमन तो सही ड्यूटी गुड़िक मध्यरे एमानक मध्यरु केउंटी को रॉन्गली लिस्ट करा जायछि. ठीक अछि, चारोटी ऑप्शन रहिला. चारोटी ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी कोन हबो? तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन बी, टू वर्क फॉर राइजिंग द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फीयर. तेबे ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा. द कॉन्स्टिट्यूशन vests the responsibility for the enforcement of fundamental rights. Option A, exclusively with the Supreme Court. Option B, both with the High Courts and the Supreme Court. Option C, with all the courts in the country. Option D, none of the above. तो हमारा क्वेश्चन थिला, द कॉन्स्टिट्यूशन vests the responsibility for the enforcement of fundamental rights. तो यार सठिक आंसर टी कोन हेबो? तो यार सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन बी, बोथ विथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑप्शन ए, टू मेक द फंडामेंटल राइट्स मोर इफेक्टिव. ऑप्शन बी, टू चेक एंटी नेशनल, subversive and unconstitutional agitations. Option C, to accord priority to the directive principles over fundamental rights.
Option D, to achieve all the above objectives. तो फंडामेंटल ड्यूटी गुड़िक कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन पाई ऐड करा जायछि तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन बी, टू चेक एंटी नेशनल सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, which one of the following is not included as a fundamental duty? Option A, evidence by constitution and respect for its idols and institutions. Option B, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Option C, to ensure rule of law in the country. Option D, to safeguard public property and to adjure violence. The question थिला, which one of the following is not included as a fundamental duty? ए जो चारोटी ऑप्शन रही एमानंक मध्यरु केउंटी फंडामेंटल ड्यूटी रो अंतर्भुक्त नुहे। तो चारोटी जाक पढ़ी सारिला परे तुमे माने निहाती जानि पारुथिबो जे एमानंक मध्यरु फंडामेंटल ड्यूटी केउंटी नुहे बोली। तो एरो सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी, टू एंश्योर रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो ऑप्शन सी होची आरो राइट आंसर। Next question टी रही, which one of the following has been enlisted as a fundamental duty in the constitution? एमानंक मध्यरु केउंटी को फंडामेंटल ड्यूटी हिसाब रे एनलिस्ट करा जायछि। चारोटी ऑप्शन रही, चारोटी जगह ऑप्शन वर्तमान देखि नेबा। ऑप्शन ए, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। Option B, to defend the country and render national service when called upon to do so. Option C, to protect and improve the natural environment. Option D, all the above. तो एरो सटीक आंसर टी कोन हेबो निहाती भाबरे ऑप्शन डी हेबो एरो सटीक आंसर ऑल द अबव। ए तीनटा जको जहा किछि भी रहिछि सेगुडी को फंडामेंटल ड्यूटी हिसाब रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे सूचित होइछंती। तो एरो सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन डी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज। ऑप्शन ए, unanimously welcomed. Option B, welcomed by the opposition parties only. Option C, welcomed by the ruling only. Option D, none of the above. तो एरो सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन सी, वेलकम्ड बाय द रूलिंग ओनली। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द सिटीजन्स एंड नॉट बाय एलियंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। डबल आई, राइट टू फॉर्म associations of unions. Triple I, equality before law. IV, freedom to assemble peacefully without arms. Select the correct answer using the codes given below. Codes are option A, I, double I and triple I. Option B, double I, triple I and IV. Option C, I, double I and IV. Option D, I, triple I and IV. तो हमारा क्वेश्चन टी थिला, which of the following rights can be claimed only by the citizens and not by aliens with the territory of India? तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन सी, I, double I and IV. Freedom of speech, right to form associations of unions and freedom to assemble peacefully without arms. Next question टी रही, to whom among the following is the right against exploitation guaranteed by the Indian Constitution? I, children. Double I, tribals. Triple I, women. IV, horizons. Select the correct answer using the following codes. Codes are option A, I and triple I. Option B, double I and IV. Option C, triple I and IV. ऑप्शन डी, आई एंड डबल आई। तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन ए, आई एंड ट्रिपल आई, चिल्ड्रेन एंड वोमेन। ठीक अछि।
our next question ଟି ରହିଛି if the land belonging to a poor man is appropriated by the government without compensation, he cannot directly approach the high court for redress because the option A costs involved are exorbitant, option B right to property is the legal right, option C court have been deprived of the power to determine compensation, option D matter is outside their jurisdiction. तो एमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? If the land belonging to a poor man is appropriated by the government without compensation, he can't directly approach the high court for redress because the option B होची right answer, right to property is a legal right. ठीक अच्छे, तो आम मैंने जानिचे राइट टू प्रॉपर्टी रो जो राइट थिला हमर जो फंडामेंटल राइट मध्ये सेटा उठी जाइछि, सेटा गोटे लीगल राइट हो जाइछि। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्पेसिफिकली recognizes that the state has a moral responsibility to provide employment to its citizens. Option A Great Britain, option B India, option C USSR, option D USA. तो यार सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी यूएसएसआर। रशिया रे जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा रहिछि जे कंट्री रो प्रत्येक नागरिक को सर्विस जोगे दिया जिवो, से माने बेकार होई बसिबे नहीं, से माननको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे दिया जिवो प्रत्येक सिटीजन माननको यूएसएसआर रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज वाइटल फॉर द successful working of democracy? Option A right to property, option B right to association, option C right to assemble, option D right to criticize. तो एमानंको मध्यरु केउंटी is vital for the successful working of democracy? तो हमर क्वेश्चन टी थिला which one of the following rights is vital for the successful working of democracy? डेमोक्रेसी रो जो कार्य दिगरे क्यों राइट टी असुविधा सृष्टि करूछि? एमानंक मध्यरु चारोटी ऑप्शन थिला राइट टू प्रॉपर्टी, ना राइट टू एसोसिएशन, ना राइट टू असेंबल, ना राइट टू क्रिटिसाइज। निहाती भाबरे ऑप्शन डी होछि यार राइट आंसर, राइट टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करबा द्वारा जे कोनोसी मनुष्यर मनोभाव थमी जाई पारे, किंबा से कोनोसी जदी गोटिए भलो काम करबा को जाउ थाय पारे, ताको जदी क्रिटिसाइज कर दिया जिवो सेही जगह रे ही तारो मनोबल भांगी जिवो। तो राइट टू क्रिटिसाइज होछि यार सटीक आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स हैव बीन एनुमरेटेड फ्रॉम ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35 of the Indian Constitution, option B article 13 to 36 of the Constitution, option C article 15 to 39 of the Constitution, option D article 16 to 40 of the Constitution. तो फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन मानक पाई कि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ आर्टिकल रु केउ आर्टिकल मध्यरे सूचित करा जायछि? तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन ए आर्टिकल 12 to 35। 12 रु 35 आर्टिकल मध्यरे इंडियन सिटीजन मानक पाई कि फंडामेंटल राइट सूचित करा जायछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन एन इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑप्शन ए मे बी सस्पेंडेड, ऑप्शन बी स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ऑप्शन सी कैन बी एंजॉयड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी हैव नो मीनिंग। तो जेतेबेले इमरजेंसी समय आसी थाए राष्ट्र रे, सेतेबेले फंडामेंटल राइट गुडिक जो सिटीजन माननको दिया जाइछि सेगुड़िक कौन हो पारे? मे बी सस्पेंडेड, सस्पेंड हो पारे, स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ना कैन बी एंजॉयड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ना हैव नो मीनिंग। तो यार सटीक आंसर टी होची ऑप्शन ए मे बी सस्पेंडेड, कारण जेतेबेले राष्ट्र रे इमरजेंसी आसी थाए तो इमरजेंसी समय रे फंडामेंटल राइट गुडिक सस्पेंड कर दिया जाय थाए, किंबा न कर दिया जाय भी पारे, किंतु जो आर्टिकल 2021 रही
से दुईटी आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसी समय रे भी हटे दिया जाई पारि न थाए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी were added by the 42nd amendment now formed a part of original constitution now do not form a part of the constitution now were added by the first three amendments to the constitution the यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन बी formed a part of the original constitution next question रही the framers of the Indian Constitution borrowed the idea of directive principles of state policy from option A, the Government of India Act 1935, option B, the Government of USSR, option C, the Constitution of USA, option D, the Constitution of Irish Republic. तो यार सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इरिश रिपब्लिक रो आमर जो डीपीएसपी रही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रही से आइडियाटा आमर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु बोरो करा जायथिला नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन ऑप्शन ए पार्ट आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी पार्ट ट्रिपल आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव पार्ट्स तो यार सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी पार्ट IV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी पार्ट IV रे वर्णित होईछि ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ ऑप्शन ए इंजंक्शन टू द गवर्नमेंट टू refrain from doing certain things option B instructions to the government to do certain things option C request to the government to pay attention to certain subjects option D judicial injunction to the government to enact certain laws तो यार सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन with a view to ensure a democratic government in the country, provided a strong central government, establish welfare state, and raise the living standard of the weaker sections of the society. तो এই চারটি অপশন মধ্যরু সঠিক আনসারটি কোন হেবো তো यार सटीक आंसर हेबो ऑप्शन सी एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट The directive principles were incorporated in the constitution with a view to establish welfare state ठीक अछि next question टी रही the main objective of the directive principles is to establish political democracy in the country establish social and economic democracy in the country now raise the moral and ethical standard of the people now establish a police state in the country तो यार सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन बी एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो एमानंक मध्यरो केउंटी रॉन्गली लिस्ट करा जायछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ऑप्शन ए रही प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड for all the citizens option B provision of employment facilities to all able-bodied persons option C protection of workers especially children option D securing of equal pay for equal work to both men and women तो एमानंक मध्यरु सटीक आंसर टी कोन हेबो निहाती भाबरे ऑप्शन बी होची एरो राइट आंसर प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज टू ऑल एबल बॉडीड पर्सन्स ठीक अछि देन आमे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो पूर्व क्वेश्चन भली एटा मध्य देछि तो एई चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउंटी को रॉन्गली लिस्ट करा जायछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे ऑप्शन ए रही कंप्लीट फ्रीडम इन द इकोनॉमिक स्फीयर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स as well as producers
Option B, regulation of economic system of the country with a view to prevent concentration of wealth and means of production. Option C रही to ensure decent standard of living and facilities of leisure for all workers. Option D रही to protect the children and youth against exploitation. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन A, complete freedom in the economic sphere in the interest of consumers as well as producers. ठीक अछि. Then आमे हमारा next question को जिबा. Next question टी रही which one of the following directive principles can be described as Gandhian in character? एई चारोटी जाक मध्यरु केउंटी को तार कैरेक्टर रो आमे गांधीयन बोलिका कहि परिबा. ठीक अछि. ऑप्शन ए रही प्रोविजन ऑफ इक्वल वर्क टू बोथ मेन एंड वुमेन. ऑप्शन बी रही प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स स्पेशली चिल्ड्रेन. ऑप्शन सी रही सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ऑप्शन डी रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ऑप्शन डी होची एरो सठिक आंसर गांधीयन बोली एटा को कैरेक्टर आमे केमिति जानि परिबा. तो ऑप्शन डी टी रही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो निहाती भाबरे एटा जानि परिबा एटार कैरेक्टरिस्टिक रु गांधीयन बोलिका कारण एटी सेल्फ गवर्नमेंट संपर्क रे कहा जाईछि स्वराज्य संपर्क रे कहा जाईछि विलेज पंचायत गुडी को एमितिका इफेक्टिव करबा दरकार जहा फल रे कि से माने निज कथा निजे बुझि पारुथिबे. ठीक अछि. एटा होची गांधीयन प्रिंसिपल रो गोटिए कैरेक्टर. ठीक अछि. Then next question रही which one of the following directive principle is non-Gandhian? एमानक मध्यरु केउ कैरेक्टरिस्टिक टी नॉन गांधीयन बोली जणा जाउछि. ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ कटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया. एटा तो हबनी कारण कटेज इंडस्ट्री गांधी चाहुथिले जे सबुआडे कटेज इंडस्ट्री रहू बोलिका. ऑप्शन बी रही प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पसेस. Option C रही prevention of slaughter of cows, calves and other milch cattle. Option D provision of free and compulsory education for all the children up to the age of 14 years. तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन डी कारण एटा गांधीयन प्रिंसिपल मध्य रे जाउ नाही. एटा गुटी हमर रही जाउची फंडामेंटल राइट मध्य जाउची. तो ऑप्शन डी होची यार राइट आंसर कारण एटा गुटे फंडामेंटल राइट मध्य जाउची डायरेक्टिव प्रिंसिपल मध्य जाउ नाही. अन्य तीनोटी गांधीयन प्रिंसिपल होइतिबा बेले ऑप्शन डी होची नॉन गांधीयन प्रिंसिपल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही which one of the following is in the concurrent list in the Constitution of India? Option A population control and family planning. Option B public health and sanitation. Option C capitation taxes. Option D treasure trove. तो यार सठिक आंसर टी कोन हेबो. हमर क्वेश्चन थिला which one of the following is in the concurrent list in the Constitution of India? concurrent list रे एमानक मध्यरु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केउंटी रहिछि निहाती भाबरे यार ऑप्शन ए हबो राइट आंसर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग रही concurrent list रे Constitution of India रो. Then रही which one of the following comes under the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court? Option A disputes between the center and states. Option B disputes between the states enter Supreme Court. Option C protections of the fundamental rights. Option D protection against the violation of Constitution. तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड as early as 1979 in option A Kerala, option B Jammu and Kashmir, option C West Bengal, option D Tamil Nadu. The anti-defection law एटा टिके मने रखिबो. इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे जोटा कि 1979 मसीहा रे
कार्यकारी होइथिला तो केउ राज्य पाइका हेथिला सेटा ठीक अछि तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन सी वेस्ट बेंगल पाइकी जो एंटी डिफेक्शन लॉ रहिथिला 1979 मसिया रे सेटा कार्यकारी होइथिला वेस्ट बेंगल रे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही which one of the following determines that Indian constitution is federal option a written and rigid constitution option b an independent judiciary option c vesting of residuary powers with the country option d distribution of powers between center and the states तो यार सठिक आंसर टी हबो ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एमानक मध्यरु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑप्शन डी जहा कि रही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एई पॉइंटटा आम कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बोलिका सूचौची ठीक अछि देन हमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही तथा हमर लास्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स इन व्हिच द लोकायुक्त एक्ट इंक्लूड्स the chief minister in its ambit option a west bengal and kerala option b gujarat and maharashtra option c madhya pradesh and odisha option d rajasthan and karnataka तो एमानक मध्यरु केउ राज्य रे लोकायुक्त एक्ट इंक्लूड करा जायछि चीफ मिनिस्टर पाइन की इन इट्स ambit तो चारोटी जाक ऑप्शन मध्यरु सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन बी गुजरात एंड महाराष्ट्र पाइका गुजरात एंड महाराष्ट्र रे लोकायुक्त एक्ट इंक्लूड करा जायछि द चीफ मिनिस्टर इन इट्स ambit ठीक अछि तो ऑप्शन बी होची एरो राइट आंसर ओके तो एपरि भाबरे हमें 30 क्वेश्चन वर्तमान डिस्कस करिनेले आई होप तुमे माने समस्ते जानि परिथिबो ए 30 क्वेश्चन रो जहाँ किसी भी डिस्कसन कले तो से निहाती भाव में गोटे कि दुईटी क्वेश्चन तो निहाती आसब जदि एग्जाम रे आसिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल एवं राइट्स हो फंडामेंटल राइट्स हो कि फंडामेंटल ड्यूटी मध्यरु निहाती भाव में क्वेश्चन आसब आई होप तुम्हें माने जदि भलसे एटा को पढ़ी देइथिबो किंबा जानि देइथिबो तो निहाती भाव में तार आंसर सठिक भाव में देकी आसी परिबो तेबे ठीक अछि वर्तमान आमे ए 30 क्वेश्चन डिस्कशन करे सारिछि नेक्स्ट आमे किछि नुवा टॉपिक संपर्क रे डिस्कशन करिबा थैंक यू।